शिट, here we go again. बिराम काजी, आ तो गए हैं हम. दिल मेरा कोई नहीं था इस सीरीज को कवर करने का, लेकिन ऑब्वियसली अब काम है तो करना पड़ेगा. माय गॉड, पाकिस्तान जीत गया सीरीज ब्रो. लेकिन मुबारक हो भाई, बेस्ट इन द वर्ल्ड बेबी. Mubaracations. I mean, Pakistan won the third ODI, the deciding ODI in Lahore at the Gazafars by 4 wickets and 49 balls to spare. तौबा. Sadi, they sealed the series by a margin of 2-1 versus an under-strength Australian team. Yeah. I mean, they've gained so much. मतलब वो इतनी अंडरस्टैंड थी कि आपको जरूरत ही नहीं बड़ी चेंजेस करने की. Exactly. बहुत चीजें उस तरह तो, but yeah, I mean, Pakistan might have won the series, and this is their third successive ODI series victory versus Australia. But I would be challenged to believe मजा आ गया. that there are fans out there who are in a celebratory mood. मजा आ गया. I really would be challenged. फैंस कौन होते हैं जब टीम सेलिब्रेट कर रही है, कैप्टन सेलिब्रेट कर रहा है, कोच सेलिब्रेट कर रहा है, तो हम कौन होते हैं? Yeah, I mean, अब ठीक है, थर्ड सक्सेसिव ODI सीरीज जीत गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और पिछली दो मुझे पसंद आई थी. एक में 350 चेस हुआ था. पिछली वाली तो बहुत अच्छी थी. हाँ, इन ऑस्ट्रेलिया जब आप जीते, that was fantastic. But by winning this series 2-1, what have you gained, man? You did everything in your power outside of the actual game to secure a result over here. They gained a series win, bro. उनके ईगोज बूस्ट हुए हैं कि हम तो जीत सकते हैं क्रिकेट. जितना कुछ आप कर सकते थे आपने किया, just so that you can secure a series win against under strength Australia. I mean, congratulations, man. मतलब वो जो है बड़ी मुश्किलों से जीते हो ये सीरीज भी. वैसे मर के ही जीते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी. डिजर्व नहीं करते थे. हाँ, I mean, it would have been karmic justice or poetic justice had they lost the series, और हार सकते थे कल जब वो आउट हुए ना 6. हारना चाहिए था. मुझे नहीं लगता था कि समद और शदाब पहुंचा देंगे एंड तक, मगर वो पहुंचा गए. At that point, I had even checked out to the point where I wanted Pakistan to kind of lose, man. I know this is kind of blasphemous, but नहीं जब when I saw no changes in the second ODI, when I saw the same pitch, मैं तो तब से ही था कि ये हारे. साथ ही वैसे you called it. मैं चाह नहीं रहा था. मैं sarcastic हो रहा था. हमारी जो एक बहुत ही ardent viewer है या follower है, Tuba pointed that out on Twitter that Saad said no changes, man. मैंने कहा यार last time तो साद ने भी शायद जेस्ट में ही बोला होगा. मैंने जेस्ट में ही बोला था. ये तो नहीं करेंगे, सीरियसली लेंगे. कर लिया भाई. But yeah, I mean, after going out of your way and leaps and bounds to secure this series win, आप क्या अब ट्वीटे लगा लो, खुश हो जाओ. यार कसम से आप लोग भी ये बता सकते हैं, was this series watchable? No, it wasn't. It was unwatchable, bro. I don't know कि ये क्या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं भाई. This sort of series या this sort of ODI cricket you are trying to sell, that is like selling chemotherapy to cancer free people. ऐसे ही. मतलब कि आपको कैंसर नहीं है मगर ये रेडिएशन ले लो जरा. हाँ, वो रेडिएशन ही थी. I've lost some years watching that game last night and the series in total. The series, bro, that's horrible viewing. El Horrible. El Terrible था ब्रो. ये El Timidos है ये. El Timidos. और सोचते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा इससे भी वर्स वर्ड आना चाहिए. आप इस हद तक timid हो, you are timid to the point where you doctored the pitches big time. तीनों वनडे में सेम पिच. हाँ, नहीं और बुरी होती गई है. लास्ट में तो वर्स थी. The last ODI, ये जो तीसरा ODI that we're here to review, that was like day 5 of a test match. That's how bad it was. Or day 1 in Pakistan. Yeah. Now, I like it. I like it. Day 1 in Multan versus the West Indies. ठीक है, so you doctored pitches going out of your way because ये natural behavior नहीं है पाकिस्तान की pitches का, right? There was 0 squad rotation. You could have picked an 11-man squad for this 3-match ODI series. 0 squad rotation, yaar. 0 9 0 0 7 8 6 0 1. There's no fun. Yeah. There's no fun. Sufyan Mukim को एक गेम नहीं मिली इन पिचेस पे यार. And Sufyan Mukim had signed a contract with Derbyshire. तो अगर आपने उसको खिलाना ही नहीं था on these dust bowls, you curated 3 dust bowls back to back and Sufyan Mukim, Sufi Makamara, he didn't feature once. उसको जाने देते इंग्लैंड, फिर वहां पे भी कुछ सीख लेता, कुछ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस कमा लेता मिकी आर्थर के साथ, because Derbyshire का कोच तो मिकी है ना. मुझे सर मारने का दिल कर रहा है अपना कहीं. So doctored pitches, no squad rotation, terrible rationale from leadership, जो कि मैच भी नहीं करता. मैं तुम्हें वही बात कर रहा था ना, हिपोक्रेसी की. हिपोक्रेसी होती है. हिपोक्रेसी, एक कुछ और बोल रहे हमारे कोच कैप्टन, कुछ और बोल रहे, एक्शंस वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे टीम के भी. अजीब, पता नहीं क्या सर्कस बनाया हुआ यार. मतलब पता नहीं किसको बेवकूफ बनाया. माइक हैसन, बाय द वे,
less than a year ago was complaining about the nature of the surfaces in Bangladesh. हाँ जी. ठीक है जी. कि oh this is not fit for international cricket, these sort of tracks. तो भाई ये क्या था? आपको लगता है the yesterday game, the track in Lahore, which apparently was a fresh pitch. मैं थोड़ा शुरू में excited हुआ, मैंने कहा fresh pitch? Oh, okay. वो और जलील पिच थी भाई. मैंने कहा कि शायद यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाए, but what is this, man? You are cowards. You've lost half of your fan base. You have made a mockery out of cricket. कोई भी नया बच्चा देख रहा होगा ना, वो फैन बनना चाह रहा हो क्रिकेट का, वो कहेगा नहीं भाई, no, I can't watch this shit. Doctored pitches, no squad rotation, then terrible rationale, then also you didn't bat first once. 2 दफा तो टॉस जीते. यार ये this is worse than a school team यार. I swear to God, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते यार. इतनी क्या आपकी फट गई यार? Why are you so cowardly? तुम क्रिकेट 26 में बेहतर चेंजेस कर लेते होगे यार. I swear to God, बल्कि ये फट्टू भी नहीं है. वो जो इंडिया में फ करते ना, फट्टू है. फट्टू है ब्रो, ये फट्टू हरकतें. फट्टू नहीं है, फट्टू हरकतें. Proper फट्टू. I mean, that is the takeaway from the series, that you were so cowardly that you did everything in your power to secure the series win. तो मुबारक हो यार, बस यही कह सकते हैं. Congratulations, man. मतलब Mike Hesson, I am disappointed. What the fuck is this? सारे बाहर करो. Don't insult our intelligence by saying that this is preparation for the ODI World Cup, because even Parl is not this diabolical. वहां पे भी थोड़ी slow pitch है, इतनी slow वहां पे भी नहीं है. अच्छा, ये तो हैसन ने बात की थी ना, कल शाहीन ने क्या बात की? उल्टी. जो हम सोच रहे थे, शाहीन ने वो कंफर्म कर दिया कि नहीं, हमारी होम सीरीज थी, वी गेट टू मेक और क्यूरेट द सॉर्ट ऑफ सर्फेसेस दैट विल सूट अस, एंड एवरीवन डज दिस. सो बैम भाई, इफ यू हैव वॉच्ड लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट इन द लास्ट लिटिल व्हाइल, नो वन डज दिस इन लिमिटेड ओवर्स. और उसके बाद उसने बात की है कि वर्ल्ड कप प्रिपरेशन तो अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने जाने, काफी यही वाले प्लेयर्स ने. हाँ. तो वहां जाके प्रिपेयर कर टेस्ट लेंगे. क्रिकेट में हो जाएगी ओडीआई क्रिकेट की प्रिपरेशन. ये टेस्ट क्रिकेट से वर्स था. हाँ, हम लोग इस वाली सीरीज के अंदर टेस्ट मैचेस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. हाँ. और वो भी यार, you're going to get spicy decks in the West Indies where fast bowlers will get a lot of assistance. In England, sure, वहां पे कोई आइडिया नहीं हमें इस दफा क्या होगा. It could be seaming tracks, it could be flat It could decks. be this जो अभी इंग्लैंड न्यूजीलैंड का टेस्ट शुरू हुआ है. पहला मैच इंग्लैंड में हमेशा इस तरह का जाता है. तुम्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल याद है? आई होप कि उनका समर किक ऑफ हो गया और इस तरह की पिच मिल गई हो, क्योंकि इस पे हमने तो 50 नहीं करना. नहीं मुश्किल है. इस वाली पिच पे तो 50 नहीं होगा. इंग्लैंड वुड बी थिंकिंग व्हाट वुड हैव बीन हैड दे चांस देयर आर्म. बट पता है, ये वाली पिच जो आपको लॉर्ड्स में भी देखने को मिल रही है ना, दिस इज गोना गेट बेटर टू बैट ऑन. यहां पे उल्टा सीन है भाई. दिस पिच, फ्रॉम द मिनट दैट द फर्स्ट बॉल वाज बोल्ड, यू कुड टेल के शिट फिर बढ़ गए. हाँ, सेकंड बॉल पे वो विकेट गिरी है ना, वो भी स्लोनेस ऑफ द ट्रैक ही लाई है. स्लो, हाँ, बॉल पहुंची ही नहीं. But चलो, if Hassan was trying to insult our intellect or intelligence, Shaheen confirmed everything that we were thinking. कि नहीं, we wanted to win this series. Winning series is important. This mattered to us. दो ब्रेन सेल्स है, आपस में लड़ रहे हैं इन सब के. वाकई भाई. I mean, Saadi, this was a dust ball of the highest order where the ball ragged so much that Matt Renshaw was turning it a mile. Miles. हाँ, मैट रेंशो की बॉल इतनी घूम रही थी, मैं कह रहा हूं यार, ये क्या फायदा है इस तरह की पिच बनाने का. दिस इज फकिंग मैट रेंशो. व्हाई इज मैट रेंशो अनप्लेएबल? व्हाई इज मैट रेंशो बॉलिंग? मैट रेंशो शुड नेवर बी बॉलिंग एंड ही शुड नेवर एवर बी अनप्लेएबल. What is this? This is the worst advert for ODI cricket. Like I said, worst advert for selling this product to the masses is like selling chemotherapy to cancer-free patients, क्योंकि वो मर नहीं रहे, वो हेल्दी पेशेंट है. लेकिन मारो ने. आपने कहा नहीं, आप रेडिएशन वैसे ही ले लो, थोड़ा जल्दी मरना. हाँ. हम नहीं चाहते आप ज्यादा लंबा जिंदा रहो. हाँ, थोड़ी सी स्लो पॉइजन से ज्यादा बढ़ जाए बात, थोड़ा फास्ट पॉइजन आ जाए इसके अंदर, क्योंकि ये क्रिकेट देखते देखते तो मर जाना है सबने. वाकई मर जाना है भाई. देखी नहीं जा रही थी सादी. आई मीन, चाचा क्रिकेट रिटायर्ड हिज और टाइम्ड हिज रिटायरमेंट टू परफेक्शन. एब्सोल्यूट परफेक्शन. बेचारे लास्ट होम सीरीज ये थी उनकी. उनको ये क्रिकेट दिखाई है आपने. बट यू नो, चाचा क्रिकेट परफेक्शन कह सकते हो, ही टाइम्ड हिज रिटायरमेंट टू परफेक्शन, बट इट कुड हैव कम 4 years earlier, क्योंकि 4 साल से हाल तो आपका यही है. बट हु कुड हैव इन देयर राइट माइंड और इन देयर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स और इमेजिनेशन, 4 साल पहले कौन सोच सकता था ये हाल होगा? Who could have ever thought कि Pakistan cricket would have nose-dived in this fashion? I mean, I definitely didn't see it coming, right? They should have lost. Unfortunately, the unpredictables first became painfully predictable, and now they have become the unwatchables. Unwatchables. Because this was unwatchable cricket. I don't know how I got through this series. Yesterday, I was cursing my own luck कि यार मैं न्यूजीलैंड में पैदा क्यों नहीं हुआ, because I want to watch the test match. तुम इंग्लैंड भी कह सकते थे.
हाँ वहाँ पे ज्यादा आसान होता है मगर तुम्हारे लिए। न्यूजीलैंड इज बिट कूलर हाँ but तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होता है इंग्लैंड में बैठे हुए मैच कवर कर रहे होते ट्रू हाँ टाइम जोन वाला और मसला न्यूजीलैंड से तुझे ट्रैवल करना पड़ता है इंग्लैंड But- अपने लिए आसानियां ना करो न्यूजीलैंड इतना प्यारा मुल्क है ना कि फिर ड्यूल नेशनल या चलो स्टोक्सी Stokesy क्यों नहीं Why था मैं? was I not born as Benjamin Stokes? Yeah. Benjamin Andrew ये तो Stokes, काफी right? ज्यादा लोग सोचते हैं हाँ, काश वैसे। मैं बेन स्टोक्स होता। वाकई नहीं खैर हेयरलाइन मेरी बेहतर है स्टोक्सी से वो ट्रांसप्लांट वगैरह का करा है और अब तो बिल्कुल ही सूख गया है। वो जब से उसको वो बॉल लगी है ना बॉल मुंह पे। लगी है उसकी फेशियल जो फीचर्स हैं वही चेंज हो गए हैं ब्रो। खैर सुना हमने पढ़ा मैंने I opened Crick Info prior to the toss and I was like oh fresh pitch Fresh. interesting nope yet another minefield and this was the minest field of the minefields ये क्या था the ball was keeping low it was turning square from word go there was reverse on offer halfway through the first innings ब्रो 20th ओवर में रिवर्स शुरू हो गई थी। 26th में शायद ना मैं 22nd ओवर हारिस रऊफ का था देखो जाके वो रिवर्स हो रही थी। खैर रिवर्स इतनी जल्दी शुरू हो गई इतनी ड्राई कंडीशंस थी इतना आपने सुखाया हुआ था सारे सीन को I mean, I can honestly, I'll repeat myself. I can understand the curation of raging turners for Test cricket when you are hosting teams who suck playing spin. हाँ because you want to get those points on the table. Yeah. World Test Championship के लिए आप खेल रहे हो Exactly. कोई context है उधर। If they're England and they suck at playing spin, you curate those sort of surfaces because their points on the line make sense. Can someone please explain to me why there were no changes throughout the 3 games in an ODI series and you had these minefields out and out? सुफियान मुकीम को गेम नहीं मिली है स्पिन पिचेस पे यार। यार सूफी मैक ही नहीं ट्राई किया उसको वाकई भेज देते यार वो डार्बिशर में मिकी के साथ कुछ सीख जाता शायद वो इंग्लिश कंडीशन में बॉल करना सीख जाता कुछ तो वो सीखता गेम नहीं मिली यहाँ पे- सुफियान मुकीम को गेम नहीं मिली यहाँ पे क्या सीखा उसने कुछ भी नहीं है यार। Yeah. हाँ, मेरे मुंह से कुछ I गलत was- निकल जाएगा मैं वो निकालना चाह नहीं रहा। I was listening to Ashley Nofke after the game and he was like, yes, Sufi is a brilliant bowler and he'll get his chance. Why didn't he get his chance in this series? How have you picked a squad of 16 and Naseem Shah, Matt Danny, aka Ahmed Danial, Sufi Mac apna Sufyan Mukim, Rohail Nazir and Shamil Hussain, they've gone untested. मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा मैं गाली निकल गई ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। This is so regressive. The tactics were extremely regressive, which were on display. और पता है, I have never been this disappointed after a Pakistan series win. मैं तो काफी अरसे से हो रहा था लेकिन ऑनेस्टली इतना डिसअपॉइंट मैं कभी भी नहीं हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वांटेड पाकिस्तान टू लूज अ मैच। इमेजिन दैट। Never in my life, Sadi, and I have been an ardent cricket lover, और शुरू में तो पाकिस्तान क्रिकेट लवर था ना, since 2002ish. Yeah. ठीक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा तब से लेकर Yeah. अब तक, right? And never in my life as a Pakistan fan, and then in my journey as a cricket media professional, have I ever wanted to switch off the television. And I never thought that I would use these words for Pakistan cricket, because if anything, they keep things entertaining even when they lose. मगर यहाँ पे तो there was this inevitability कि okay, this is turning a goddamn mile. Matt Renshaw is unplayable. देखते हैं survive कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. Day 5 of a test match, literally. रियली डिड नॉट केयर। रियली डिड नॉट। ऊपर से या तो सामने कोई बहुत ही बड़ी टीम होना, ऑस्ट्रेलिया भी अंडर स्ट्रेंथ है यार. देयर इज नो मार्श, ग्रांटेड ही गॉट इंजर्ड, वो होना था. मार्श हेड, नो ट्रेविस हेड, नो कार्टेल. No Xavier Bartlett. Stark, no Xavier Bartlett. I would have put in Aaron Hardy over here. as Yes, well. Aaron Hardy probably got in ahead of Cam Green if you think about it. कोई भी नहीं। नथीरा मतलब क्या कह सकते क्या हैं. है यार ये? Like I said, they have made an absolute mockery of cricket in Pakistan over here, and then they expect कि कौम celebrate करेगी इस तरह की victory को. कोई नहीं सेलिब्रेट कर रहा है। Trust me, कोई I have, सेलिब्रेट नहीं कर I'm रहा। yet to come across someone जो कह रहा है कि यार बड़ा मजा आया, good stuff, Pakistan won, ये. No, I haven't come across that fan. I've come across, not a fan, but I've come across some people अच्छा. like our captain. Yeah, I'm disappointed यार. I thought Shaheen was a brave lad. Shaheen भी नहीं, coward निकला. शाहीन की कोई सुनता है? खैर आकिब भाई के सामने शाहीन ने क्या कहना है? आके गुरु है. हैसन एंड वो हैसन की भी नहीं ज्यादा चलती अच्छा. होगी जितनी आके बॉल की चलती है। We bro. don't know exactly what sort of cohort there exists जो ये चीजें प्लान करता है, but surely Akib Javed is a part of it, and surely Mike Hassan is as well. अब टॉप आके जावेद। अच्छा, हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं, अगर किसी ने एको की है ना तो वो सोबी मैक्स ने echo सोबी मैक्स, आई लव यू ब्रो। सोबी मैक्स ऑन हुआ है ट्विटर पे. अजहर अली भी लगा रहे बातें, मगर अजहर भाई ये बातें करनी थी ना जब आप सिस्टम का पार्ट थे. हफीज भी कर रहा है। हफीज वैसे आई लव यू फीजू, आई लव यू फीजू। टू हिज क्रेडिट प्रोफेसर हमेशा से करता तो रहा है। बट यू गेन नथिंग. सब वो बांग्लादेश को कोट करने लगे, बांग्लादेश फोल्ड. सबसे पहले किसने किया था? या
ये And look at how they've gotten progressive और आप कदम पीछे ले जा रहे हो यार. I can't understand any of this. It was infuriating to watch this cricket. Bro, हम बोलते थे कि 90s की क्रिकेट खेल रहे हैं. This 70s 60s की क्रिकेट भाई. This is not even just a regular slow track. उसके ऊपर 200 फिर बन जाता है. This was a minefield. यार 158 चेस करना अजाब हुआ है. Sadi, you could watch the puff of dust ballooning or bursting off of the surface. बॉल इतना टर्न कर रहा था, वो भी फारिग स्पिनर्स का. ये क्या है यार? No one wants to watch this crap. Shut up. हाँ? Oh, कल एक्चुअली वैसे 2 मिरेकल्स हुए. हाँ. पाकिस्तान फुटबॉल finally scored a goal and then scored 2 more. 3-0 उन्होंने मारे मालदीव्स को. Their first victory since that Cambodia game years ago. 3 years. Hashtag Mission Maldives. उसके बाद फिर लास्ट गोल आया था लास्ट ईयर अगेंस्ट अफगानिस्तान. हाँ. तो अब जाके उन्होंने 3 गोल मार के 3-0 won the match और फिर साथ शादाब खान ने विकेट ले ली. 2 विकेट ले गया यार for the first time since the 10th October 2023 in that ODI World Cup game in Hyderabad where Pakistan defeated Sri Lanka chasing 350 odd. तब से लेकर अब तक 7 games and 3 years almost later, Shadab Khan has finally struck in ODI cricket. What alternate timeline is this? Mubarakations. It took him long enough to take a wicket on surfaces which were assisting spinners big time. वो कंबोडिया गेम भी 2023 में थी. Damn. अक्टूबर में ही नहीं थी. कुछ बदल गया? I'm pretty sure. क्या cosmic imbalance हो गया? थोड़ा सा ये जो imbalance था वो balance हो गया? 3 से to June 26. वो जो नजूमी ज्योतिषी टाइप लोग आते हैं, सितारे देखते हैं, उनको बोलो यार ये साल सत्ती वगैरह का क्या सीन चल रहा है. मेरी अम्मी कभी बार देखती है ना तो उसमें बंदा बोलता है साल सत्ती, तो मैंने कहा यार साद सत्ती तो मेरा दोस्त है. साल सत्ती का नहीं बोला. साद सत्ती कहां से आ गया इसके अंदर? खैर यार, like we continue to said और say पता नहीं मैं भी पागल हो गया, continue to said हो गया. Continue to said ही है bro, ये past tense में बात करो. Like we have echoed throughout all of these 3 podcasts, ये जो reviews वाले थे, absolutely unwatchable stuff. Or better part of 2 years. Had I not covered cricket professionally, if it wasn't my job, I wouldn't have even watched this series. इस तरह की क्रिकेट किसी ने नहीं देखनी. पता है टेस्ट मैचेस में मजा आता है. नहीं, इस तरह के टेस्ट मैचेस फिर भी देखे जाते हैं. Exactly, वो वॉचेबल होते हैं. ये नहीं देखे. ODIs वॉच यार, अगर 42 ओवर्स लग रहे हैं आपको चेस करने के लिए 150 ऑड या सेट करने के लिए 150 ऑड, then I mean God help everyone. No one. I mean, I'm sure Australia probably left feeling कि यार ये मतलब थोड़ा सा ही स्पोर्टिंग कर देते, थोड़ी सी even surfaces ही बना I don't really care about what they were thinking. I'm only here to talk about what Pakistan was thinking with curating these pitches. They wanted to win. They're insecure, Sadia, I keep telling you. इनको अपनी नौकरियों की फिक्र है कि हम कहीं सैक ना हो जाए. वो तो सही कहते हो तुम. ठीक है. I agree with you. और पता है किसी ने लिखा हुआ था कि that series win versus England in tests really came back to haunt us. टेस्ट में मैं अभी भी बोलूंगा, if you're getting England or South Africa or Australia or any Sena team, England भी क्या रह गई? Not New Zealand. Not New Zealand perhaps. वो इंडिया को मार गए उस तरह की pitches New Zealand. तो यार I still understand the logic कि ठीक है, you want to secure those points. These tests matter, but ODI cricket में bilaterals don't matter anymore. They mean zilch, nada, nathira. सिर्फ आपकी प्रेप है कि हम साउथ अफ्रीका जाके क्या करेंगे. साउथ अफ्रीका, नमीबिया एंड जिम्बाब्वे जाके क्या करेंगे. सॉरी, पूरा बोला करो. You can probably take this from me in writing. Bulawayo will not be this slow. Paul might not get a game. इस तरह की स्लो कहीं भी नहीं मिलेगी. ठीक है. I'm serious when I say Paul might not even get a game in the World Cup. मैं बता रहा हूँ इस तरह की पिच नहीं मिलेगी. और नमीबिया में if you get a game, it will be against Namibia. You should be able to defeat Namibia in any conditions. What are you preparing for? You are not thinking long term at all. You're going for the shortest of gains. मतलब यार, I need to calm down. Look at what the world is doing, how they treat bilaterals. Look at how you are treating bilaterals. आपने सबक नहीं सीखा अभी तक? After underperforming in ICC tournament after ICC tournament after ICC tournament after ICC tournament. This was deliberate क्योंकि 4 हो गए हैं. मतलब 4 ही हो गए ना? हाँ, 2023 ODI World Cup, 2024 T20 World Cup, 2026 T20 World Cup और Champions Trophy 4 और फिर बीच में एशिया कप्स भी डाल लो. फिर डालो ना. And you know what, when they were curating this sort of or these sort of tracks in that T20 series versus Australia prior to the T20 World Cup, we were fine with it. We were like, हाँ, maybe in Sri Lanka you'll get something similar, तो ठीक है, इस पे तैयारी कर लो. अभी क्या सेंस? और वो है भी T20 यार. 50 over game is completely different game to T20s यार. And
हम ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली द टफेस्ट प्लेस टू बैट, बट इन टेस्ट क्रिकेट वेयर यू गेट बाउंस एंड लैटरल उधर मूवमेंट, मिलेंगी ना जब फ्लैटीज, हाँ। ओए होए मजा तो तब आएगा। असल बाउंस और लैटरल मूवमेंट तो टेस्ट क्रिकेट में होता है। यहाँ पे यू थिंक एज पाकिस्तान यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वॉन्डरर्स एज अ वेन्यू, न्यूलैंड्स एज अ वेन्यू, और भी होगा कोई तीसरा भूल रहा हूं मैं तो ना दूं। हाँ वैसे ना दो इनको, मैं तो ना दूं, मैं हूं, मैं को यार खेलो आप, सेंचुरियन एज अ वेन्यू, ये लो तीसरा भी आ गया। आप पाल में ही खेलो, वो बड़े ग्राउंड है उनके, वहां पे वो ज्यादा मैचेस रखेंगे। आप गलती से फाइनल में पहुंच के पाल में खेलोगे आप। अच्छा, अब जाकर अगर पाल में आपको मैच मिल गया, अगर तो पाल को मैच मिला सबसे पहले तो ये डिस्कशन है ना, एंड इफ यू नाउ लूज दैट गेम तो फिर और हैरत की बात है। मुझे नहीं लगता था मैं कभी भी इतना पेसिमिस्टिक हूंगा। They continue to repeatedly shoot themselves in the foot and I don't understand it. You cannot think कि आपकी फैन बेस इतनी बेवकूफ है। आप डरपोक हो, अच्छा, पता है- सिर्फ ये नजर आ रहा है लोगों को। अच्छा पता है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम काफी ज्यादा लोग बोलते थे दिस इज द डार्केस्ट पीरियड इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। आई डिड नॉट एग्री विद देम, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड जितने भी हमारी कंट्रोवर्सीज हुई हो, जितनी भी गंदी हमारी टीम हुई हो, स्पेशली आफ्टर दैट 2003 वर्ल्ड कप डिबाकल, सारी टीम चेंज हो गई थी और पता नहीं कौन कौन खेल रहा था। फीज मेड इट्स डेब्यू, फरहान आदिल एंड द जुनैद जियाज ऑफ द वर्ल्ड, तब भी अनवॉचेबल नहीं हुई थी यार, नहीं, कि मैं देख ना सक रहा हूं यार। देख ही नहीं पा रहे थे हम लोग तो। My eyes were bleeding. यार क्या है। Now we're down on our knees and bleeding. गांव में जो बच्चे हैं भूखे, राउंड अबाउट पे वो मांगते हैं भीखे के भाई को अच्छी क्रिकेट दिखा दो। साउंड क्लाउड पे मैं गाने चढ़ाऊं, इसी के गाने बनाते हैं कि कोई अच्छी क्रिकेट दिखा दो। I'm down to be the clown on weekends। इसीलिए क्लाउन बन जाते हैं कि ये वाली क्रिकेट देखनी पड़ती है वीकेंड्स उनको में। छोड़ दें, आप मुझ पे हंस लें, ये पाकिस्तान क्रिकेट कह रही है, आए दबा लें हमें पाँव के नीचे। ये हमें दबा रहे हैं। I mean, I just left that there. वैसे क्या ही वर्स लिखा है फारिस ने। वो बहुत है। Now that I think of it, it's so applicable. मेरे हर सिचुएशन में पाकिस्तानी होने के नाते Yeah, I क्रिकेट mean, हो या ना हो, पता नहीं क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं यहाँ पे। If they're just trying to secure their jobs, then well, good luck, because there's no ODI cricket now till October. So there's no cricket for 54 days Pakistan cricket and I love it। yeah, man, I'm मैं looking नहीं forward. देख सक रहा था, और Really looking forward to this break. हाँ, FIFA World Cup आ जाएगा। वर्ल्ड कप में तो फिर मजे आएंगे ना। आएगी आपके लिए काफी ज्यादा। lots of content will be created for you during the FIFA World Cup. प्रो स्पोर्ट्स फुटबॉल चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो। या Better crowd in this ODI at the Kazafirs than the second ODI. बेचारे उन पे भी तरसी आ रहा था कि वो क्या आए देखने को होंगे मिल रहा यार, है। चलो सीरीज डिसाइडर है, कोई एंटरटेनिंग क्रिकेट मिलने नहीं लगेगी। एंटरटेनमेंट तो ये थी नहीं ना, ये तो टॉर्चर था। वही तो मैं कह रहा हूँ, चाचा क्रिकेट ठीक रहेगा। अब चाचा आपने इंग्लैंड में जिताना है, वहां पे जितवा दो। हाँ, किसी तरह वो लास्ट स्वान सॉन्ग जो है ना अपना पूरा कर लें। बढ़िया, आई काइंड ऑफ फेल्ट फॉर चाचा क्रिकेट एज वेल। इतने कितनी एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग एक्सिलरेटिंग क्रिकेट देखी हुई है पाकिस्तान को खेलते हुए। दिस वाज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एक्सिलरेटिंग क्रिकेट। दिस वाज ए स्लो बर्नर। तुम बात कर रहे थे ना ये वाली, रादर वॉच पेंट ड्राई, मैंने पहले भी बोला या आई मीन आईड रादर हैव अ कन्वर्सेशन विद अ टोस्टर। ठीक है, वो तो तुम्हारी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। हाँ, तुम कर लोगे बात। नहीं, टोस्टर और मैं काफी शुगल लगा लेंगे। वो टोस्ट फेंकेगा, मैं कोई बात करूंगा। तुम वैसे ही कर लोगे ब्रो उसके साथ। बट तुम बात कर रहे थे ना कि हाउ दिस माइट बी द लोएस्ट एब इन पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री। उस्मान समीउद्दीन के आर्टिकल में वापस जाऊंगा मैं, व्हिच इफ यू स्टिल हैवंट रेड, पीपल गो रीड इट, साद इंक्लूडेड। ठीक है, उसमें ही मेंशन्ड द 1960s और पाकिस्तान प्लेड वेरी फ्यू टेस्ट मैचेस, लाइक 30 or 28 or something. They won 2, right? Yeah. Bad era performance wise, but then that got rectified. Player आ गई। हाँ, but that was 1960s It as well। was. अभी आपने शुरू ही किया होगा, 10 साल हुए हैं। इन्फेंसी स्टेजेस में थे। करदार रिटायर्स, फजल महमूद रिटायर्स, हाँ। बैम, खान मोहम्मद रिटायर्स, जिसका कोई नाम नहीं लेता मगर टेरिफिक रिकॉर्ड, ग्रेट। इनसेन रिकॉर्ड। ठीक है, एंड देन यू पिक थिंग्स अप बैक इन द 70s। फिर आप आ जाओ 2000s के अंदर। द डैरल हेयर इंसिडेंट हैपेंस विद इंजमाम, नैंड्रोलोन, स्पॉट फिक्सिंग, शुरू वाली मैच फिक्सिंग। 2000 saw a lot. श्रीलंकन अटैक, देन द अल्टीमेट स्पॉट फिक्सिंग। पाकिस्तान क्रिकेट की resilience की बात होती थी कि how this is such a resilient team that in the midst of all of that they even lifted a trophy. Despite all of that. Yeah, in 2009 जिस साल अटैक हुआ श्रीलंकन क्रिकेट पे, you're lifting a trophy. yeah, you won the T20 World Cup and then you picked things up again, so you were resilient. This is a slow death. ये आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड हो रही है, नजर सबको आ रही है that this is a terminal decline, बचना नहीं है इससे। And it's only because of your mindset, guys. Yeah. It's only because of your mindset. Planning, your mindset, जिस तरह की timid आप सोच रखते हो, क्या और है ये सबसे बड़ा इशू इस माइंडसेट का और इस प्लानिंग का ये है ना, ये क्रीप इन करती है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। प्लेयर्स जो नए बच्चे आ रहे होंगे, दे विल बी फेयरफुल। वो
उनमें ये टिमनेस आ जाएगी, वो जिस तरह फील्डलेस क्रिकेटर्स हमें देखने को मिलते थे ना, वो नहीं मिलेंगे। नहीं, मुश्किल है। और आपकी ये पूरी माइंडसेट पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएगी, फिर आप इसी रट में फंस जाओगे। वो एक तरह की क्रिकेट खेल कर आ रहे होंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑन सर्टेन सर्फेसेस, एंड देन दे आर गोना गेट टू प्ले ऑन दीज इन योर होम गेम्स, और दे वोंट गेट टू प्ले ना, क्योंकि सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल को तो नहीं गेम मिली, शामिल और रोहिल को तो नहीं You मिली। get a minefield, you don't even test out your entire bench. आप 5 बंदों को ना ही सिलेक्ट करते, आप 11 की स्क्वाड सिलेक्ट कर लेते। और कोई बच्चे उठा लेते फील्डिंग के लिए अगर जरूरत पड़े, जिस तरह कल मां सदाकत के लिए थोड़ी देर के लिए जरूरत पड़ी हाँ, थी। बेचारे को सर पे लग गई थी। Yeah. 2 दफा, एक तो Yeah. पहले On the ground and then on the holding. और फिर उसके बाद बैटिंग करते हुए सर पे हेलमेट पे भी लगी उसे। चलो 3 दफा कैम ग्रीन की बॉल 3 दफा लग गई बेचारे को। खैर यार, रियली अंडरवेलमिंग शो। ठीक है, पाकिस्तान जीत गया होगा, बट आई डोंट थिंक साधन हैव एवर सैट डाउन इन दीज पर्टिकुलर चेयर्स एंड वी बीन सो लिविड, और ज्यादा तनकीदी कर रहे हो जीत के बाद। आई कैंट रिमेंबर अनदर पॉडकास्ट लाइक दिस। कौन सी जीत यार? पता नहीं, ये सिर्फ थियोरेटिकल जीत है। कौन सी जीत? It's a victory in theory, but if anything, you haven't gained anything. If anything, you haven't gained anything. मैं पागल हो गया हूँ। सही है, Yeah. ठीक है। You haven't gained ऐसी shit. क्रिकेट देखने के बाद आई अंडरस्टैंड, ऐसा हो जाता होता है। नहीं, मुझे बताओ, apart from Arafat, what have they gained? Nothing. Is Shadab Khan back? Oh my God! नहीं, कुछ भी नहीं। उस पे आएंगे आराम से। आराम से का टाइम नहीं है मेरे पास Yeah. ब्रो, इनकी बात करने के लिए एक और कॉफी की शॉट चाहिए। या वैसे पता है, ये कॉफी उतनी गर्म नहीं थी जितनी मैं सोच रहा था। काशिफ ने थोड़ी ना, काशी बीन एंड टी लीफ ने ठंडी कॉफी पिला दी है। My God, क्या जा मैच पे यार, क्या बात करनी है यार। जब माइला। अच्छा, इनसे एंड तक सादी नेथन एलिस नहीं पकड़ा गया। Nathan Ellis and his off cutters comes like an off spinner. Yeah, I mean, he's got 3 deliveries. One is the pace on ball, one is the back of the hand slower one, and the off cutter. and the off cutter जो बाबर से I'm telling you end तक नहीं खेला गया था, वो थोड़ा लकी हो गया। फरहान से भी नहीं खेला Yeah. गया, फरहान उसी तरह आउट हुआ। अच्छा, स्पिनर्स तो विकेट लेंगे ना इन तरह की सर्फेसेस पे, you'd imagine they would, of course they would, but Nathan Ellis भी आपसे नहीं रीड हुआ पूरे तरीके से। कितनी विकेट ली है एलिस? Ellis probably ended up with like 7 wickets. उतनी तो शीनो ने भी लिए हैं यार, क्या बातें कर रहे हो तुम? अराफात ने भी शायद ली है। और वो तो स्पिनर है ना, Yeah. पेसर की बात कर रहे हैं। शीनो ने 7 विकेटें ले ली। वैसे शीनो इस मैच में तो अच्छा खेला। कोई नहीं अच्छा खेला बेरा, मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ ये, मैं पहले से बता रहा हूँ। अच्छा यार, आ जाते हैं मैच। जॉश इंग्लिश अच्छा खेला। Yeah, we've talked a lot about the themes and everything. अच्छा, मुझे जॉश इंग्लिश की इनिंग्स पे आने से पहले 2 चीजें समझा दो। First, Australia won the toss. Why did they elect to bat first? उन्होंने कहा इन्हें नहीं देनी। हाँ, हम अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, इनका नैरेटिव खराब रहे। इन्होंने नहीं, ठीक इनको है, नहीं देनी। पता नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ठीक है, फ्रेश पिच जो भी होगी, आपको नजर तो आ रही थी। वो खेलना चाह रहे होंगे ब्रो। Maybe they misread it. नहीं, I think they wanted to test themselves out. Yeah. Hey, I was a bit shocked when I saw that Australia won the toss and English has opted to bat first. And one more shocking thing. Yeah, why did Cooper Conley replace a frontline bowler in Tanveer Sangha? सबसे पहले मुझे कोई पता है कूपर आया कब है स्क्वाड में? Cooper! क्योंकि स्क्वाड में तो नहीं था, मार्च की जगह आया होगा। I guess. But I mean, I love myself some Cooper because I get to say Cooper. But he is not a Tanveer Sangha replacement. पता है मैं क्या सोचा होगा? Our part timers will get them out. हम बैटर ही खिला लेते हैं। सही सोचा था, वैसे सोच बुरी नहीं थी। सोच इतनी बुरी बस नहीं वो could not pull it off, क्योंकि मुझे फिर इनके बैटिंग ऑर्डर की यार, बैटिंग ऑर्डर चलो, at least we saw Josh Inglis open finally. Yeah. And that paid off as well. Yeah. But carry at 4, use carry in the lower middle order. वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, imagine Ollie Peak, or in fact, Ollie Peak in his wildest imaginations would have never thought that when I get my debut game for Australia, I'll be penciled in to bat at 7. But he was batting at 8. Yeah, for 2 games I'll bat at 7 and then I'll be demoted to number 8. Don't understand that. A frontline batter at number 8 or Cooper at 7 or carry at 4. It's just everywhere. Cooper चलो Cooper खेल लेता होगा नीचे भी कभी कभार, ऑस्ट्रेलिया तो खिलाती है उसे, वो भी गलती है। पीक को 4 पे कर देते। पीक को 4 पे करो या मार्नस को 4 पे करके पीक को 3 पे करो। Why is Marnus still playing ODIs? मार्नस की जगह वैसे रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी कूपर फॉर मार्नस। Yes, that's what should have happened, and I don't believe Marnus will play ODI cricket for Australia. he's done. You know, in the next he's cycle or this cycle. I think he's done now. Yeah. हाँ, जरूरत भी नहीं है उसकी। He was never particularly good at ODIs. और मार्श और हेड वापस आ जाएंगे तो किसी ने तो निकलना है, और वो मार्नस है सबसे पहला। या पहला बंदा मार्नस निकलता है, कैरी भी निकलता है। हाँ, Because you've got Inglis. I think कैरी लेकिन स्क्वाड में होगा, बैकअप कीपर। Backup keeper, perhaps they go down that route. But yeah, I mean, odd stuff from Australia as well. पूरी series में, this entire series, the batting order was all over the place, all over the shop.
खैर, Inglis was really good. Inglis was top tier. In fact, Yeah. I thought his batting. He was the best batter on display. Yeah, absolutely. In 100%. this particular game, no one batted better than Josh Inglis. He should always be opening, I feel. If not as opener, तो Then फिर first यार, drop then. हाँ, first drop और top four में तो होना चाहिए. But as opener, he does really well. Because once Marsh and Head come back, maybe Marsh can go first drop, but I'd open with Marsh and Head. अभी वो हनीमूनिया मना रहा था अपनी इंग्लिश, तो IPL थोड़ा मिस किया. But then when he came back to play in the IPL, he was really good. And he was really good over here as well. Yeah, finally opened the batting. 56 ball half century for him. Pull versus pace. Brisk. Yeah, very brisk. In these conditions, exceptionally brisk. इसने एक शॉट मारी थी अरफात को ओवर एक्स्ट्रा कवर. That was beautiful. आगे निकल के नहीं अगर तुम down the ground. पूरा वैगन व्हील देखो तो पुल वर्सेस पेस we know about. He's too good. If anything, he didn't do enough of it. Yeah. पुल वर्सेस पेस एक ही यार है. वो इतनी बॉल उठ ही नहीं रही थी कि पुले मारे यार. ये भी बात ठीक है तुम्हारी. His cut shots versus pace were also really good, not just in this game but throughout the series. मगर इस game में he got off the mark, I think. Square of the wicket ball. Yeah. Square of the wicket on either side. Yeah. He's really good. ठीक है. One of my favorite shots was the dab to third man. cheeky. वो बहुत cheeky सा, इसने हारिस रऊफ को शायद चौका मारा था. वो तो कोई मसला नहीं है. Yeah, that's easy stuff. Dab to third man was really good. Then square drives versus pace and spin. Yeah. So again, as Saad said, square of the wicket on either side. Yeah, and then those two shots. 2 shots, 4 and a 6 Yeah. against Arafat. Yeah. आते के साथ ही उसे सेटल नहीं होने दिया. नहीं अरफात को टेक डाउन किया है. Used his feet to go up and over extra cover for a 6 and a 4. Yeah. And then we all know that he's going to reverse sweep as well. If anything, he didn't reverse ramp enough. That's something that Josh Inglis also does. यार I think the slowness of the pitch थोड़ा सा उसे डरा रही होगी. ये reverse ramp के लिए क्या edge है जो जाने दो out हो जाऊंगा. बिल्कुल. खैर 56 ball half century which was brisk and then 65 of 71. Bit of a weak dismissal. किसने किया? वो मिड ऑन पे कैच हो गया था शीनो पे. Oh yeah. और पता है he was going or trying to hit in that long on mid on region over and over again और नहीं लग रही थी, तो I don't know why he persisted with that जब और शॉट है आपके पास हैं इतनी ज्यादा. But Inglis was the best batter on display in this the match. ODI. Yeah. And he was one of 2 standout performers for Australia. Yeah. The other guy is Matty Kuhneman. Kuhneman. I mean, what a terrific effort with the ball. Yeah. Best bowling performance as well. हालांकि ऑस्ट्रेलिया मैच हार है, the best bowling performance and the best batting performance came from Australians. उसकी जो बॉल ड्रिफ्ट इन होती है ना, it's so beautiful to watch. और कल तो खैर बाबर को तो उसने हिलने ही नहीं दिया. नहीं. Oh my god. He had one end completely tired and he was threatening the outside edge over and over again with that insane amount of drift that he was generating. Beautiful. And killer accuracy. Accuracy and the turn then. Yes. Turn तो चलो मिली नहीं थी ना, रेनशॉ को मिल रही थी तो कुहनेमन को तो मिलनी थी. वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना जब ड्रिफ्ट इन कर रही हो बॉल और थप्पा खा के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए. He wasn't giving the ball a lot of air. हाँ. तेज करा रहा था. It's good. Yeah. तभी तो उसको ड्रिफ्ट मिल रही थी इतनी ज्यादा. But the accuracy was exceptional as well. Matty Kuhneman has had a good series, but this game is where he really excelled. Cleaned up Ghazi Ghauri, जो कि उसकी गलती थी गाजी की. वो पता नहीं क्या शॉट. उसके पास एक ही रिलीज शॉट इट सीम्स. चलो खैर. One sweep too many. आएंगे. अभी बच्चे आएंगे उसके ऊपर. He cleaned up Babar Azam with an absolute ripper. Oof, that was a special delivery. That was one of the balls of the game. एक हारिस रऊफ का भी बड़ा अच्छा बोल्ड था. So those two. That was a special delivery. Yeah, that was really special. I mean, I can't even blame Babar too much on for getting out on that one क्योंकि बाबर सरवाइव तो कर रहा था उसे बहुत देर. बस सरवाइव ही हो रहा था वो. हाँ, वो उसका प्लान ही सरवाइव. पता नहीं कैसे हो रहा था वैसे. He was like, I'm going to survive versus Kuhneman. I'm going to come and defend with a straight bat. Edge नहीं दूंगा इसको. End में edge की जरूरत नहीं पड़ी. Top of off. That was a great delivery. Yeah. That was an insane delivery. And then he also got Cousin Sal to edge one to the keeper जहाँ पे technical flaw था. Babar was playing with a straight bat. Cousin Sal ने open किया face of the blade को. भी और इतना बड़ा gap. Yes. Moving away from the body, 0 footwork. So होना ही था ना. Edged one to the keeper. So 3 for 38 for Matt Kuhneman. Do you think he was better than Inglis? No, I think Inglis ने मुश्किल conditions में batting की है. Inglis की बहुत बड़ी performance थी वो with the bat. Spinner तो चलता ही है ना. In conditions में. Yeah. But खैर again Nathan Ellis was terrific throughout the series. उसका breakdown कर दी है तीनों जो बॉलें हैं उसकी. बाकी I don't think there's much else to talk about Australia. I don't even think they will care about this series or remember this series. No one will. एक चीज की बात करनी. Matt Renshaw took a wicket. Oh हाँ. His first wicket in international cricket. Exactly. And it looked like he would take 2. Oh, शदाब को ऑलमोस्ट एलबीटी हो ही गया था उसे अगली डिलीवरी पे. भाई नहीं खेला जा रहा था मैट रेंशॉ. मैट रेंशॉ आई नेवर इवन सीन हिम बोल बिफोर दिस सीरीज. मतलब ये हालात है आपके. मैट शॉट को तो छोड़ दो, वो पार्ट टाइमर है मगर वो रेगुलरली फीचरिंग पार्ट टाइमर है. वो कजन सैल टाइप चीज है. मार्नस कर रहे, रेंशॉ बॉलिंग कर रहे. क्या है ये यार. रेंशॉ पे तो गेम ही खत्म हो जाती है ना. तभी तो मैं कह रहा हूँ वो शायद यही सोच रहा हूँ कि हम बैटर बढ़ा लेते हैं. और पार्ट टाइमर्स विल बी इनफ.
बस थोड़ी सी बेहतर बैटिंग कर लेते तो दे वर इनफ। अफसोस ये था कि बिली स्टैनलेक ना देखने को मिला फिर से। ठीक है बस। कैम ग्रीन ओपन द बॉलिंग, ठीक था, पड़ी में है। कैम ग्रीन का स्टॉक बहुत डिप्लीट कर गया। Especially with that price tag in the IPL. I think the IPL price tag has done in no favors. Opposite. This is still a very talented cricketer, by the way. But I still feel जब से he's- वो पैसे फेंके हैं, I still feel कोलकाता he's ने- got a very high ceiling. पता नहीं बस नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा. But Ability- मतलब सब कुछ है उसके पास। got a bit of a fragile body, but he's got heaps of talent, very high ceiling as Saad said, और ऊपर से अभी young है, so hopefully his time will come. youngster. So I don't want to be overcritical of Cam Green because we know कि potential बहुत ज़्यादा है. मगर ever since that deal with कोलकाता, कलकत्ते मीठे ने जब पैसे फेंके हैं, कलकत्ते मीठे ने कुलकन एक्स्ट्रा फेंके ना साहब, हाँ मसला वो है। तब से कुछ हुआ नहीं Yes. कैम ग्रीन से. कैमथी जो है ना, मार्नस तो चलो हम कह रहे हैं ना कि होना ही नहीं चाहिए. कैम ग्रीन तो हम कहते हैं नहीं होना तो चाहिए. कैम ग्रीन होना चाहिए था बस, ठीक है नहीं Yeah. चला तो नहीं चला, वो उनका मसला है यार। Exactly. वो अपने मसले खुद सॉल्व कर लेंगे. आप अपने मसलों पे आओ भाई, आपके बहुत मसले हैं. सॉल्व तो नहीं होते। मसलूसेस हैं, मसलूसियां प्रो मैक्स. अच्छा चलो कहाँ से स्टार्ट करना है पाकिस्तान का? यार, Fielding से ना करें? हाँ, पहले fielding. हाँ, let's get the fielding out of the way. अच्छा, right? by the way, Australia made no mistakes in the field, so they get a perfect score in fielding. हाँ, उन्होंने we're कोई not giving scores but they do get a उन्होंने score. कोई गलती नहीं की तो उनको फिर क्या ही बोलना है उनकी फील्डिंग पे. ठीक है, पाकिस्तान वर मोर हॉट देन दे वर कोल्ड इन द फील्ड. आई टेल यू दैट. बेहतर फील्डिंग की. हाँ ठीक थे, या अच्छा था। नहीं आई लाइक्ड फरहान का कैच शुरू में. हाँ अच्छा था। He took a couple, but the first catch to dismiss Matt Short, Short. that was really good. Salman Ali Agha, really good catch in the slips. Ball was rising. हाँ वो तो safe है। हाँ, उसने पकड़ लिया. There were 2 run-outs in the game. Yeah. For one, Haris Rauf and Arafat Minhas combined to run out Marnus. That was Arafat's और फिर- run out by the way। That was Arafat's run-out. हाँ, obviously. रऊफ ज्यादा खुश हो रहा था। तो क्या हो गया क्यों यार? ज्यादा खुश हो रहे? तुम्हें बहुत शदीद मसले हो गए. मसले हुए हैं। शदीद अख्तियों वाले शदीद मसले. अख्ती वाले मुझे काफी ज्यादा लोगों से मसले, बेचारा रऊफ आ जाता है सामने यार। Yeah, and then there was that Shamil Hussain run-out towards the end. वो गाजी गौरी क्या कर रहा था तूने देखा था? He thought- वो थोड़ा स्टाइल मार रहा था. नहीं, he thought कि वो पहुंच गया बंदा क्रीज में, उसके बाद सलमान अली आगा उसे डांट रहा है यार तू देख तो सही। अच्छा ये हुआ हाँ। है? मैंने कहा वो थोड़ा शशके मार रहा है. नहीं वो उसको देख रहे क्या थ्रो फेंकी यार तूने, पीछे आउट हुआ है। The ground fielding was terrific, out and out. it was good. Yeah, Shadab even in the ground field, or as far as his ground fielding is concerned, he had a good series. एक Arafat misfield. Misfield, yeah. Apart from that, Chalk हो गया. spectacular ground fielding, really good. ठीक है, Ghazi Ghani dropped a catch. हाँ वो कैरी वाला हाँ. थोड़ा मुश्किल था लेकिन पहुंच गया था, पूरे हाथों में आ गया। हाथ में आ गया था, but he did well to get there. And if he dropped Alex Carey on 0, so then he made amends by taking a really good catch जहाँ पे Ollie Peak was dismissed off the boot. बेचारा, उसकी भी किस्मत देखो. वो किस्मत एक्चुअली शादाब की थी। आनी थी ना अगर शादाब की विकेट वो actually 3 किस्मत साल शादाब बाद और 7 गेमों बाद तो वो वो इसी ऐसे ही आना है। इसी तरह आनी थी. Ollie Peak slammed the ball in his boot and it popped up and Ghazi Ghori caught it. So if he dropped a difficult-ish chance of carry when he was on 0, then Ollie Peak वाला पकड़ा तो ठीक है, that cancels it out. Pakistan won this game essentially in the first innings. ठीक है, I mean Colaspus Maximus तो आया है. उन्हें 175 कर जाते ना, उन्हें हार जाना था। वाकई हार जाना था। Australia, by the way, were looking very pretty, very solid at 98 for the loss of 2 wickets in 22 overs. At that point, I thought कि आज तो 250 मारेंगे ये पक्का. ठीक है, but then कोलैस्पियां ही हैं ऐसी। from 98 for 2 in 22 overs, they went to 157 all out in 42 overs. So if I do some quick math here, मैथ्स होता है, that's 8 wickets lost for 60 50 59. 60 59. 59 हाँ 157 है। 8 wickets lost for 59 runs in 20 overs. So that was game set match. पाकिस्तान ने कोशिश की मैच हारने की, but स्कोर इतना कम था, टारगेट इतना कम था that they got there. कि वो eventually. और स्लो खेल के भी जीत सकते थे। Yeah, I mean, look, I will give some credit to Samad and Shadab for stringing that partnership towards the end. क्योंकि अगर वो ना करते तो मैच हार ही गए थे ये लोग। पक्का। I won't give them credit क्योंकि मैं तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था। It was the last recognized batting pair, and at least they, हाँ ठीक है, weathered the storm and then chased it down. अच्छा खेल। They played it safe. बैटिंग and- ठीक की है दोनों ने। Yeah. बस इतनी तारीफ निकलेगी आज मेरे मुंह से। But Australia essentially, they were looking in pole position to really threaten. 98 for 2 in 22 overs, and on these sort of tracks is great. हाँ उसके बाद फिर बस Colaspia Maximus 157 all out in 42 overs, game set match. अच्छा बॉलर्स पे आ जाएं हम। उल्टा कर रहे हो पहले बॉलिंग ही कराई है ना, बस बॉलिंग। अच्छा नहीं हम एक ही Player- तरह रेटिंग्स नहीं करते. प्लेयर बाय प्लेयर चल रहा है। साहिद ज़्यादा फरहान 6 of 7 2 catches is not it. No, we're not giving ratings. But he won't be in the ODI. He No, shouldn't be in the ODI. I don't think Saif Zada Farhan has staked his claim
in ODIs. यार इस परफॉर्मेंस की बेस पे T20 से ना निकाल देना, हाँ। बस मैं ये बोलूंगा। वो एजाज का यही ट्वीट था हाँ। कि टाइम फॉर साहिबजादा फरहान टू गेट ड्रॉप फ्रॉम T20Is, बिकॉज़ होता तो यही है। ही वाज रियली पुअर फरहान थ्रू आउट दिस सीरीज, और कल वही एलएस की बॉल सीख लो खेलना, नहीं। उसने दिखा दी है 3 बॉलें आपको। वो हाथ से रीड ही नहीं करते ना, मसला ये है। हाथ यार- से रीड करने की एबिलिटी होती तो बच जाते। If it's not pace on, it's back of the hand slower one. If it's not back of the hand slower one, it's going to jag back in if you're a right-hander, because it's the cutter. इट्स फेयरली इजी। खैर टीवी पे हम बैठ के ज्यादा आसानी से बोल सकते हैं ये बात, लेकिन थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरह का रिलीज है उसका, यार आपको पता चल जाएगा। हाँ, खैर 6 of 7 and then 2 catches. I don't know. I was pretty underwhelmed. नहीं, थ्रू आउट द सीरीज ही वाज अंडरवेलमिंग। Once Fakhar and Saim are back from the unknown injuries that we know nothing about. But We then- don't know what the injuries are. We don't know what the recovery period is. But then again, can I judge Saibzada Farhan on this pitch? Well, he's been given a few chances in He ODIs. wasn't good in this series, not at all. But then again, It's मैं just क्या that ही you have rating दूंगा? so many guys in the depth chart. कि अगर मैंने किसी पे पांटी लेना तो फिर मैं माज पे ले लूं, वो bowling भी कराता है. Fakhar and Saim should be your starting openers. Yeah. Fakhar, Saim and then Maz is backup, and Maz भी potential पे ही backup है फिलहाल. But I just like what he brings to the table. और लेकिन कोई खैर- options भी तो नहीं है ना. You're not लेकिन- spoiled for choice. I हाँ. take Maz over Imam. 100%. You know. Mas 27 of 26. He looked all right. यार बेचारे के लिए मुश्किल गेम थी. 2 blows to the head during that fielding effort. And then one while batting. चौका बचा लिया था उसने. चौका बचा हाँ, लिया। सर को पहले जमीन पे मारा, फिर एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पे मारा, चौका बचा लिया, and then as Saad mentioned, मैंने तो मिस कर दिया Cam था. Green has his helmet Cam में Green मारा. hit his head. He rode his luck for a bit. You know, there inside was edges and top edges. inside edge पे पहला चौका था, बाद में टॉप एज पे चौका आया, but एक man, दो बड़ी खूबसूरत शॉट। बहुत खूबसूरत शॉटें मारी. Those cover drives versus pace and spin, really good, and that lofted drive down the ground for 4. I know 26 of 27 wasn't a great effort, and his dismissal was 27 poor. of 26 नहीं था? हाँ. हाँ. 27 of 26 wasn't a great effort, and I wasn't a big fan of the dismissal. क्या कर रहा था? Poor dismissal. या वो बॉल कहाँ है, तुम्हारा बैट किधर है? Rock back. Why are you going ahead? Why would you take a review on that? Is my question. I mean, it missed everything and then hit your pad और ball सीधी थी तकरीबन. तो वो dismissal गंदा था, but again, he's young, he's raw, he's only going to get better. If they want to take a punt on Maz, just have him around in the squad. I don't mind that. This 27 of 26 on this surface wasn't the worst effort, but not the best either. Baba Azam. Exceptionally slow, Babar, in this game, but chalo. 40 of 84. Yeah, look, whilst it was an exceptionally slow start, you can understand कि Babar क्या सोच रहा था. He was thinking, I need to survive Matt Kuhneman for as long as I can. Ultimately, he fell prey to Matt Kuhneman, but शुरू वाले spells तो निकाल गया था. बहुत स्लो था यार. बहुत ज़्यादा slow था. I think काफी ज़्यादा. 40 of 84 is a strike rate less than 50. I know that the game's demand was such कि ये चलता है. I don't want to berate Babar or criticize him for going this slow. But release shots कम ही थी ना. वो तो है नहीं ना. If the ball was slightly short, he would then do something. He rocked back and whipped the ball for 4. That was his first boundary. फिर बाद में एक rock back and pull for 4 आई. And then there was a cut versus pace, which to Babar's credit, he's been cutting the ball really well versus pace. आजकल वो शॉट उसकी बड़ी चल रही है. इनफैक्ट जो पुराने जमाने की कवर ड्राइव थी, आजकल की वो कट है. If I'm being honest, पहले से कंपेयर ना करो बाबर को, लेकिन अभी इस पीरियड से कंपेयर करो जहाँ पे he couldn't buy a run. Yeah. तो he looks a bit more solid. He does. I would say this was a successful series for Babar Azam, given the fact that he was so poor for 3 years. Yeah. उस तरह अगर आप जज करो तो ठीक था, और प्लस it was a day 5 track. Yeah. वो survive ही कर रहा था बेचारा. So that 40 of 84 isn't the worst in the world. I know कुछ लोग बहुत तपे हुए होंगे. It's bad. Yeah. Worst in the world तो नहीं था. Yeah, नहीं. It was just okay. हाँ. He occupied the crease. There you go. थोड़ी partnership string कर दी. Cousin Sal. Cousin Sal had a terrible series, man. Yeah. Really poor. He was one of the standout performers for Pakistan in ODIs, और एकदम से यहाँ आकर बिल्कुल ही drop in form. चलो. 15 of 24, he was really poor. He's allowed a shit series, I suppose. एक आकर late cut पे चौका मारा खूबसूरत, but 15 of 24 is bad. Didn't have a single good batting innings in the entire series. 2 over कराए, conceded 14 runs. Yeah, that's bad as None well. for 14 in 2 overs for a spinner on this pitch is bad, because Matt Renshaw को आपने देख लिया. Very shit series for Salman, but because he had been such a thorough performer for Pakistan in ODI cricket in the recent past, he gets a pass. सही है. Doesn't get a pass though. Arafat. Ghazi गौरी को भूल ही गए हो तुम. भूल ही गया बिल्कुल. 4 पे तो वो आया था. Yeah, 8 of 13 for Ghazi. Bad shot. Yeah, very bad shot.
what I'll just say is that we've noticed throughout the series and before that even, Ghazi Ghori is really strong on the sweep shot versus spin. His pulls versus pace are interesting. बस Pull versus spin भी कर लेता है. इसके अलावा बस इतना कुछ आर्सेनल में है नहीं. लेकिन चलो आर्सेनल आ गई है. आर्सेनल mentioned. come on baby. Yeah. I will just say that look, he was a pick on potential. He wasn't a picked on performance. ठीक है, potential वाली pick थी. यार आप लोगों से सवाल है. Would you continue with Ghazi Ghori in ODIs? I'd like to see Rizwan again, and maybe you can keep Ghazi in the squad. I don't mind. Rizwan needs to up his strike rate as well यार. हाँ, रिजवान का भी स्ट्राइक रेट का मसला है. यहाँ पे अगर स्ट्राइक रेट सबकी और गिर गई होंगी. नहीं यहाँ पे तो मैटर ही नहीं कर. इस पिच पे मैटर ही नहीं कर रहा था. इस पिच पे तो सर्वाइवल मैटर करता था. तभी तो मैं कह रहा हूँ बाबर का नॉक ठीक था, अच्छा था, सही है. अच्छा, बट गाजी गौरी को ये सोचना पड़ेगा कि आई कैन नॉट जस्ट स्पैम द स्वीप शॉट. इट कैन नॉट बी माई ओनली रिलीज शॉट. आप उसी चक्कर में बोल्ड हो गए. दैट बॉल वाज नॉट देयर टू स्वीप. नॉट एट ऑल. ठीक है. और कूनमन है, ही इज गोना टर्न द बॉल अवे फ्रॉम यू. द अदर वे. अगर आप बोल्ड नहीं हो रहे, टॉप एज पे आउट हो सकते हो. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गेटिंग आउट. इट्स अ वेरी रिस्की शॉट अनलेस यू कंप्लीटली गेट टू द पिच ऑफ द बॉल, जो कि वो नहीं था. और ये थी भी स्लॉग स्वीप टाइप अटेम्प्ट ना. इट वाजंट दैट शोर शॉट वाली स्वीप जो फुल आगे आकर मारता है. सो वो नहीं, दैट वाज अ पुअर शॉट. लेकिन झाड़ू फेरो, फुल फेरो, मगर नो द बॉल. Yeah, he's a kid, so we won't berate him too much. No. I mean, I'm fine with Ghazi Ghori. Honestly, he gets a passing grade for the series for me. He does. ठीक है. But then again, World Cup है, रिजवान तो चाहिए होगा. Arafat Minhas, player of the series, baby. I mean, debut ODI series and player of the series. यार काशिफ मिन्हास की स्टोरी सुनी है? कौन सी? तुमने नहीं सुनी? सुनी है. चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ. काशिफ मिन्हास is the father of Arafat and Samir. ठीक है, two prodigious cricketers. इनका एक और भाई है. इनका एक और भी भाई है, शायद वो भाई आकर. सुनने में यही है कि ये वो इन दोनों से आगे की चीज. वो पता तीसरे भाई का बोलते हमेशा यही है. देखते हैं. But वो let's see if the third brother completes the trio. But Kashif Minhas apparently was a cricketer himself. उसको बहुत शौक था. His father was opposed to him playing cricket, and his father was doing well. उनका कोई business था, कोई गाड़ियों का या import का, some crossover over there that I don't know entirely. And काशिफ मिन्हास सेड कि मैंने क्रिकेट खेलनी है. अब्बू ने कहा कि बस दफा हो जाओ, फिर छोड़ क्या कर. लेफ्ट हिज हाउस. बट आफ्टर 2-3 days ही रिटर्न्ड. बिकॉज़ जाहिर है फिर मुश्किल होता है ना. घर तो घर है, फिर सर पे छत बड़ी जरूरी होती है, फूड ऑन द टेबल, ऑल दैट स्टफ. सो काशिफ मिन्हास left his dream. He quit his dream and he was like, चलो मैं अब्बू साहब बिजनेस संभालता हूँ. And he excelled. Yeah. He gave a very comfortable life to his kids. Arafat and Samir, and the third one जिसका नाम नहीं आता. The other Minhas. Yeah, the third Minhas. The super Minhas bros. Minhas the third. Yes. ठीक है. So then the grandfather of Arafat Minhas, father of Kashif, he passed away around 2014. Kashif Minhas took his kids straight to the nets. He was like, मेरे बच्चों में talent है, इनका नहीं जाया होने देना मैंने. और देख लो मेहनत देख लो बंदे player of the series. And you could see the disappointed dad look when he was on the camera. Photographer है ना काशिफ मिन्हास भाई होंगे हमारे. तो हम तो अंकल नहीं कह सकते, हमारी उम्र से कितना ही को दूर होंगे. हम बुढ़े हो चुके हैं मेरा, एक्सेप्ट कर लो. So I am really happy that उनकी मेहनत रंग ला रही है. Arafat was a breath of fresh air. Like I said, if there is one positive that Pakistan have gained from the series, it's Arafat Minhas. And they could have gained this positive a while back. खैर broken record की तरह साउंड करते हैं हम एक ही बातें करके. But चलो, they trusted Nawaz, whatever. I don't think Arafat Minhas should be bowling in the power play though. हाँ, ये हमें नजर आ गया सीरीज. लेकिन मसला पता ही है, इन पिचेस पे आप टेम्प्ट हो गए यार अराफात को देने के लिए. माज को दे दो, उसको थोड़ा डिले कर दो. माज को अगर आप, खैर अभी तो इंजर हो गया माज ही, सर पे लग गई. बट आई वुड गिव द 2 power play overs to Maaz और फिर बाद में अराफात को लाऊं, because he's on these pitches. Yeah, on these pitches of course. I hope I never see these pitches again. Yeah, never ever again. An abomination in its truest sense. ये क्रिकेट नहीं है भाई. Yeah. ये क्रिकेट नहीं है. ये वो है यार माइंड स्वीपर. कब आप पाउंड डालोगे तो बॉम्ब फट जाएगा. खेली होगी आपने से जो कोई थोड़ी बड़ी उम्र का, जो हमारी उम्र का है, उसने माइंड स्वीपर खेली होगी. कुछ आप लोगों में से पिन बॉल वाले होंगे और कुछ माइंड स्वीपर वाले होंगे. ठीक है, ये माइंड स्वीपर थी, क्रिकेट नहीं थी. मैं तो सॉलिटेयर भी खेलता था. हाँ, सॉलिटेयर बड़ी फिट थी. और तुम शूट फॉर द मून करते थे. शूट फॉर द मून क्या होता है? यू टेक ऑल द हार्ट्स एंड देन यू एक्चुअली विन. क्या? आई डोंट नो दिस. नहीं, सॉलिटेयर नहीं, वो फ्री सेल होगी. हमें वो हार्ट्स थी. Great stuff. फ्री सेल कौन सी थी? फ्री सेल भी थी एक. फ्री सेल होती है, इसमें सारे डब्बे पूरे करने होते हैं. जो स्पेड्स हैं उन स्पेड्स से डालो. नहीं, वो सॉलिटेयर है. वो सॉलिटेयर थी. फ्री सेल मुझे नहीं याद.
हार्ट्स बहुत थी यार एक हार्ट्स थी, हार्ट्स के अंदर आप शूट फॉर द मून करते थे, ठीक है. अराफात, हाँ, if you have noticed throughout this series, whenever he's bowled in the power play, he goes for runs. This game was no different. He bowled 2 power play overs. Those 2 overs went for 14 runs, and as we mentioned, Inglis even took him down. Inglis कल बॉल के साथ नहीं चला, कल ओवरऑल ही नहीं चला वैसे. बैट के साथ भी नहीं चला. First 4 over spell was none for 26, then he came back for 2 overs. Those 2 overs were good. None for 27 and 6 finished it off. None for 27 and 6 isn't bad. हाँ बट चलो ठीक है, वो उसके पहली परफॉर्मेंसेस देख लो ना. बाकी बैटिंग में मैं क्या ही ब्लेम करूं, इतनी मुश्किल पिच थी, बच्चा है वो भी. Matt Renshaw. Yeah. Look, he cut the ball for 4 and I was like, okay, Arafat, are you going to get them over the line today? But then he got them over the line in the first over. Yeah, but then Renshaw was turning it a mile and Arafat fell for 9 of 25. I don't care about this game. He had 2 splendid ones. Really good ones. Deserved the Player of the Series award, and he is a prodigy. He was always a prodigy and he is here to stay. He is a lock for your limited over sides. हर T20 और ODI Arafat Minhas should play. Every single one of them. But will he? पता नहीं. अभी तो अराफात को जाया भी करना है ना थोड़ा सा. हाँ. मगर पता है, there is no other slow left arm bowler who is also an all-rounder in the system. So Mehran is a bit far away from Arafat. I still feel Mehran is a great bowler. यार पता है, I don't know, अब यहाँ पे there is no first-class cricket in the summer. But I want Mehran in the test setup more than the limited overs. Arafat Minhas's agent, if you are watching, please help the kid secure a deal in county cricket. Yeah. जाकर वो blast खेले. 54 days हैं, कोई क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान. इसने वो भी नहीं खेलनी बाद में. इसने टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेलनी इसमें. All you need to do, Arafat Minhas's agent. कोई पता नहीं है इसको इस परफॉर्मेंस में उठा के टेस्ट सीरीज में डाल दे. But agent का इस वक्त काम ये है कि get this kid, rather than going for those LPL वाले contracts, get him signed up with the county जहाँ पे he plays the 50 over cup, the blast, and he plays, more importantly, first class cricket. Red ball खेल ले. क्योंकि I checked his record. It's not too bad. He isn't averaging a lot of wickets per match, but average ठीक है. ये एक्सपीरियंस के साथ ज्यादा आती रहती है ना. Bro, I kid you not. Cousin Sal ने कब तक रहना है अभी टाइम. अभी है टाइम. खैर, अगर ये आए ना टेस्ट टीम में, Cousin Sal की रिप्लेसमेंट हो, समझ रहे हो? चलो वो देख लेंगे यार. अभी हम रिप्लेसमेंट, अभी Cousin Sal को कुछ करने तो दे, तो कार्ड ही दी है. और Arafat Minhas the false 3. नहीं. नेक्स्ट प्लेयर पे आ जाओ प्लीज. और 10 में से 10 नंबर अराफात को. डोंट केयर अबाउट द फेलियर इन द लास्ट गेम. पहले समद की बात कर लेते हैं यार. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट समद टू स्टिक अराउंड. आई थॉट ये जाएगा. एक अच्छी फ्लिक मारी थी. नो डिसरिस्पेक्ट टू अब्दुल समद, और वो बहुत खूबसूरत फ्लिक थी. आई स्टिल फील ही इज बेटर सूटेड टू द T20 गेम यार. या आई फील दैट. पता है, द इशू विद अब्दुल समद इन दीस सॉर्ट ऑफ games is, खास तौर पे ODIs which are tricky, like not on true batting surfaces, you don't want him before the last 10 overs. और इस तरह की surfaces पे तो वो आना ही है before the last 10 तुम थोड़ा ज्यादा कह रहे हो मुझे लगा. Last 5, last 6. Yeah. He is that impact power hitter towards the end of the innings. Yeah. He needs to be used like Iftikhar was used by Multan Sultans. Yeah. ठीक है, उसको डिले करो. और he was, और अब्दुल समद was used by Peshawar Zalmi. Last year, this year. खैर, they did send him or promote him in the final. But I would delay his entry point as much as possible. और वो भी समद ने खुद बोला था मैंने जाना. हाँ. खैर, full credit to Abdul Samad for surviving. क्या था? Unbeaten 18 of 20. 30 नहीं था. Oh हाँ, 30 था. 20 तो हो ही नहीं सकता. उस वक्त जरूरत ही है. Honestly, that's a really good effort. Unbeaten 18 of 30, and the flick versus pace for 4 was quite. That was the highlight of his innings. Yeah, delectable. I think he exceeded my expectations, because at that point I thought they would crumble. Yeah. Samad इतना अच्छा टफ पिच वाला बैटर मुझे लगता नहीं था कि है. यहाँ पे कर गया सर्वाइव, so उसको अच्छे नंबर मिल जाते. But think about it. Do you need him in ODIs? I don't think so. T20 में तो he's a lock for me. I you think need to trust one finisher. You trust him. T20 पे 6 इसका नंबर पक्का कर दो. या 7. या एंट्री पॉइंट इसका पक्का कर दो. हाँ. इसको तो उसमें तो सारे मैचेस दो, जिस तरह हम अराफात की बात कर रहे हैं. Yeah. ODIs में I still don't know bro. पता नहीं मुझे. और ऑप्शंस क्या है? हसन नवाज. Bro, शादाब इज एन आउट एंड आउट बैटर एट 6. वो ग्रेड 2 में हसन नवाज नहीं कुछ कर रहा यार. वो ग्रेड 4 वाली बैटिंग कर रहा है ग्रेड 2 में. 18 की एवरेज है उसकी 3 मैचेस. कप्तान भी है. हसन नवाज से बातें करवा लो बस कि मैं तो सारे इंडियन बॉलर्स को मारना चाहता हूँ. भाई एक को तो मार लेना पहले, फिर सारों पे आना. मारा एक को भी नहीं है, बातें बड़ी बड़ी. Someone needs to train these guys how to talk to the media honestly. ये किस चीज में ट्रेन करो यार. तुम वैसे सही कहते होते हो. साद हमेशा कहता है कि मेरा मसला तुम्हारा है. हाँ, मसला पाकिस्तान का या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का या इस मुल्क का नहीं है, मसला इस बंदे का. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख के बैठा हुआ है. यार all I want और expect is कि कुछ सेन हरकतें उन्हें लग जाएं. भाई तुम
मैं तो कहता हूँ बोरिया बिस्तर बांधो, बोरिया तो रेव स्पोर्ट्स का हेड है। नहीं तू बोरिया, मैं बोरिया को कैसे बांधूं? तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल कनाडा। यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। एक्सपेक्टेशन, प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हो यार तुम हमारे मुल्क से। आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर टू द सिस्टम। बहुत ज्यादा। एंड एज आई हैव uttered those words, मेरी खुद ही हंसी निकल आई। बहुत एक्सपेक्टेशंस है यार, क्या कर रहे हो? No, I mean, अपने साथ जाती है यार। It's a shit show, collective disaster class। किस बंदे पे थे भाई हम? समद। हो गया ना, शदाब आ गया भाई। So मुबारक हो शदाब खान को यार, finally on surfaces which were aiding spin bowlers big time, हल्की फुल्की नहीं, big time। 2 विकेटें। लो भाई मुबारकेशंस, finally 2 विकेटें आ गया वो दिन भाई। उफ। Like I said, first time in 7 ODIs, first time since 10th October 2023। वो श्रीलंका वाला मैच किसी को भी याद भी नहीं है। उसमें भी वो कोई कह रहा था कि वो विकेट लकी टाइप विकेट थी। निसांका की थी, मुझे जहां तक याद है, मार ही रहा था निसांका। हाँ। क्योंकि वहां पे कोई 350 तो बनाए थे उन्होंने। यहाँ पे भी अनलकी फॉर ऑली पीक दैट ही स्लैम्ड द बॉल राइट इनटू हिज यार अनलकी फॉर ऑली पीक बट लकी फॉर शदाब खान ना, तुम ये मिस कर जाते हो हमेशा। वो उसकी अनलकीनेस नहीं थी, वो इसकी लकीनेस। और जो सेलिब्रेशन हुई है भाई शदाब ने जब विकेट लिया कि ओ हमारा लड़का विकेट ले गया, शाहीन ने तो पकड़ के उसको सर हिलाया गया। हाँ, बाबर टोपियों को ये कर। खैर अब हम जरा ज्यादा पेटी हो रहे हैं। They're allowed to celebrate। I think अच्छा है उन्होंने सेलिब्रेट किया एज अ टीम। नहीं देखो, he actually did really well in this game। Can't say much wrong about Shadab over here। हाँ but he was extracting a lot of turn yesterday। bowling actually अच्छी कराई है, मगर यार तीसरे मैच में आके चलो I think he extracted the most amount of turn for a Pakistan spinner yesterday। परफॉर्मेंस आ गई हाँ ठीक है, but you shouldn't be coming good on these sort of surfaces in game number 3, right? बट फिर नहीं खेले ना, लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेली थी 2024 से, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली थी 2023 फर्स्ट क्लास कब से नहीं खेली, तो फिर मसले हैं। खैर इंजरीज भी उसका एक पार्ट है। Yes। You have to kind of sort of also feel sorry for the guy कि injuries have held him back, but then आप process follow। Exactly, मैं यही कहने लगा हूँ ना, if he was injured then why are you bringing him straight back into the national setup? Tell him to go and perform in domestic यार, खेल list है, खेल first class। Now that Pakistan isn't playing any ODIs till October, I am really interested to see how Shadab Khan spends this time in the middle, in between। कोई T20 लीग खेल रहा होगा? नहीं खेलो T20 लीग, खेलो लंबी क्रिकेट। If you actually want to be a part of Pakistan's plans in the 2027 ODI World Cup, then go out there, tell your teams कि I am primarily a batter, I want to bat at 6। And खेलो ना, grade 2 खेलो, जाओ खेलो, लिस्ट ए क्रिकेट खेलो, ग्रेड 2 खेलो, परफॉर्मेंस दो वहां पे। क्लियरली लुक द टीम वांट्स यू। शाहीन has mentioned वो तो क्लियरली द टीम हैसन के बंदे हो आप, ठीक है। एंड ठीक है, आई मीन हर किसी कोच की कुछ ना कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं। हैसन हैज ऑलवेज बीन बिग ऑन शादाब, ही हैज बीन वर्किंग विद हिम इन इस्लामाबाद यूनाइटेड एज वेल, व्हाटएवर, ठीक है। इफ ही गेट्स इनटू द ओडीआई टीम इट वुड बी एज एन आउट एंड आउट बैट, मगर क्या इतनी डेप्थ हो गई है बैटिंग की कि शादाब एज एन आउट एंड आउट बैट रखना पड़ेगा? ये भी है, यही तो मसला है। You're not going to get surfaces like this every now and then। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था 20 ओवर की क्रिकेट में अगर आप शदाब को समझ के खिला रहे हो ना कि ये कुछ इम्पैक्ट नॉक्स दे देगा हमें, और 1-2 ओवर हमें अगर जरूरत पड़ी तो करवा लेगा, मुझे वहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ माय ब्रेन agrees with that। I would still probably have Shadab Khan in the squad for T20s, but I'd probably start Arafat ahead of him in T20Is। But 50 ओवर क्रिकेट में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि शदाब हमारा नंबर 6 पे बैटर है प्रॉपर, फिर मसले हैं, बहुत मसले फिर इस मुल्क में बहुत मसले हैं। Because look, and this is coming from a huge शदाब खान फैन। आपको पता है मैं कितना यार, मुझे तो आप लोग सारे यही कहते हो कि एक सकलैन मुश्ताक है और एक बहराम है। And I have advocated for शदाब खान, और मैं आज भी समझता हूँ कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में खुशदिल की जगह शदाब होना चाहिए था। और खुशदिल is definitely not an all-rounder। ऑलराउंडर नहीं था, खुशदिल का बैटिंग में आ रहा था उस टीम में, पता है वो। खैर खुशदिल के साथ भी बहुत ज्यादा किए इन्होंने लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, जिस तरह अभी सुफियान मुकीम के साथ हो रही है। वो तो फिर हम लिस्ट खोलने बैठ गए तो फिर शाम हो जाएगी। खुशदिल should have never been dropped from ODIs, but he was, because उसने कुछ मैच जिताए थे आपको, ठीक है। But look, और फिर खैर चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ चलेगी क्या यार। After he broke or ended the drought with the Oli Peak wicket, he then cleaned up Adam Zampa। So in 9 overs, Shadab Khan returned 2 for 28। It was a good bowling performance। I'm not going to slag him off just because हम शुरू से कह रहे थे कि इसको होना नहीं चाहिए टीम में। हाँ, वो अब हमारी नौकरी ये नहीं है ना। और उसने mature knock ही खेला है। You can't say anything wrong about his batting either। Actually his knock was pretty decent। He was the guy Pakistan kind of needed in that situation to bat with Samad। There are no two ways about it। And there were a couple of pulls versus spin। He ended the game with one match-winning shot bhi mari, unbeaten 29 of 42, and then 2 for 28 in 9 overs। That is actually a pretty splendid performance। That was a good performance, but then again, bro, the question is, it might hurt you in the long run। Yeah, the question is, should he remain in ODIs?
मैं तो ना रखूं अभी भी। The answer is कि जाओ खेलो लिस्ट मैं तो ढूंढो मौके, परफॉर्मेंस दे के, टेल योर एजेंट परफॉर्मेंस दे के आ जाए कोई भी प्लेयर, तो फिर परफॉर्मेंस दे के आए ना। What I want from Shadab Khan is that he goes and seeks out list A cricket. पता नहीं रॉयल लंदन कप खेल लो इंग्लैंड में जैसा इमाम जाकर खेला था, और जाकर उनको बताओ कि मैं यहाँ बैटिंग करने आया हूँ। अब आप बैटिंग ऑलराउंडर हो ना, माइक हेसन ने भी बोल दिया, हालांकि you've bowled what 9 + 9 + 7 25 overs 25 overs in 3 games, so that's not batting all-rounder, that's if anything bowling all-rounder. yeah. But if you want to stay in this team, you're gonna have to keep shining with the bat. आपका अकेला रास्ता यही है, so go out there and churn out those numbers. जाओ एक आधा 100 मारकर दिखाओ या impact knocks मारकर दिखाओ, मैचेस जिताओ. You did all right with the bat in this series. 100 की एवरेज होगी, 100 की एवरेज, 100 की है ना, 71 and 29 आउट एक दफा हुआ है, 100 की एवरेज थी। 18 थे, क्या थे पहले में, कितने थे पता नहीं पहले में तो बैटिंग ही नहीं आई थी, तभी तो हम कह रहे थे खिलाया क्यों है? हाँ, याद है, जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हाँ, so please go and work on your batting because that's your only route into the 2027 ODI World Cup squad, और वो भी सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि 6 पे और ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा यार जल्दी कर यार, मेरा दिमाग घूम गया, उसका दिमाग ही घूम गया बेचारे का। कौन है ये क्रिकेट देखने के बाद और क्या होगा? शीनो का अच्छा मैच था यार, आई नो कि तू ज्यादा तारीफ नहीं करना चाह रहा। नहीं, मैं किसी की भी नहीं करना चाह रहा ना, मेरा मसला इस वक्त ये हुआ है मेरा। Shaheen removed Matt Short with his second ball, so twice in 3 games he struck in the first over, which is Shaheen Shah Afridi heritage I suppose. मगर वो दोनों विकेट जो हैं first over wickets, though they came due to the slowness of the track. वो पिच ने ज्यादा आउट कर दिए बैटर्स as opposed to Shaheen ने आउट किए हो, ठीक है। इस दफा भी Short couldn't get to the or couldn't judge the pace of the ball. हाँ, इतनी ठहर के आई थी बॉल, hold out to mid on, good catch by Saibzada Farhan. So in 3 power play overs Shaheen's figures read 1 for 15. उसके बाद जब आया that's where he turned the game basically. एक ओवर में जो 2 आउट किए थे उसने। In his first over outside the power play he removed both of Josh Inglis with his first ball, and then 3 deliveries later he got Alex Carey's wicket as well. So that double strike essentially was the turning point in the game, killed Australia off. वहां से वो कोलैप्स उनका ट्रिगर हो गया ना। वैसे तो हारिस रऊफ ट्रिगर्ड द कोलैप्स कैरी की विकेट के साथ, मगर वापस सॉलिडिफाई हो गया कि बस ये कोलैप्स आ ही रहा है। बट शाहीन डिड गेट द बॉल टू रिवर्स, टेल कर रही थी बॉल, सो गुड ऑन हिम फॉर डूइंग दैट। आई थिंक इट वाज अ रियली गुड परफॉर्मेंस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शाहीन को डोमिनेट करते हुए थोड़ा देखा ओडीआईस के अंदर, एंड इन दैट 4 ओवर स्पेल जहां पे इसने फर्स्ट ओवर में 2 विकेटें ली अपनी पोस्ट पावर प्ले, ही टुक 2 for 11 and 3 for 30 in 8 overs overall. Player of the match. Congratulations, bro. कप्तानी की जहां तक बात की जाए तो I liked the bowling changes. I really liked how he managed the pacers himself and Rauf. But then again, bro, कोई मुश्किल नहीं है इधर कप्तानी करनी ना। एक चीज डिफरेंट की, I don't know if you picked up on this. Abrar was removed after 2 power play overs, and then he brought Shadab early. You know why I thought this was good? I want Abrar there from overs 24 to like 32. और खा जाओ वहां 40 तक। हाँ, वो मिडिल ओवर्स में अबरार को देते जाओ ताकि विकेट्स आए। हाँ, वो तो ठीक है, वो अच्छी प्लॉय है, लेकिन प्रो कोई मतलब सिंपल, द पिच हैज मेड इट सिंपल फॉर यू टू कैप्टन ना। तुम भी सही कह रहे हो। इफ एनीथिंग, अगर मैं क्रिटिसिज्म पे आऊं, I mean, he didn't keep the slip fielder enough. स्लिप थोड़ा कम थी। There were about 2 edges I remember जो empty cordon से गई हैं चौकों के लिए, एक मार्नस की तो मुझे याद है। तो slip fielders weren't there as much as I would have liked them to be. But overall, Shaheen gets a passing grade in this game. Good captaincy for the most part. Really good bowling effort. यार मैं ठीक है, तुम कैप्टनसी की बात कर रहे हो, लेकिन मतलब it was basic stuff. इसलिए अगर basic stuff कर रहे हैं ना वो, तो फिर तो मैं क्या ज़्यादा तारीफ करूँ। अगर कहीं इस तरह की पिच हो जहाँ पे आपकी एक्चुअली कैप्टनसी की ज़रूरत पड़ रही हो, तो मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पे तो सिंपल स्टफ था यार। आप 2 पेसर खेल रहे हो, आपके सारे स्पिनर नहीं आने यार, और फिर बॉल रिवर्स होने लगी है क्योंकि पिच इतनी ड्राई है, तो फिर पेसर नहीं आना। बट आई डू बिलीव के पेसर्स की रिटर्न्स जो थे ना पोस्ट पावर प्ले, वो अच्छे फैसले। ब्रो वही देखा होगा ना कि ब्रो बॉल एक साइड से हो गई है, ओल्ड ड्राई कंडीशंस है, तो ये बिल्कुल बेसिक स्टफ है। पर चलो, अगर आप पॉइंट्स दे ही रहे हो, आई थिंक स्लिप फील्डर का इतना मौजूद ना होना, बेसिक्स पे नहीं दूंगा ना, बेसिक्स ठीक कर लिया, चलो उस पे कह लेते हैं हम। आई थिंक शाहीन इज नॉट द बेस्ट एट टेकिंग रिव्यूज। वो तो पाकिस्तान का मसला, कोई कैप्टन नहीं अच्छा होता, वो तो पाकिस्तान। देन देयर शुड बी मोर, और I would have liked to see the slip fielder feature a bit more at the start at least. और उसके बाद managed himself and Rauf well, bringing both of the two back for the reversing ball. और फिर अब अबरार की मैनेजमेंट अच्छी थी।
बहराम ये कसम से स्कूल का कोई कैप्टन हो वो भी यही करे यार, मैं ये तो तुम्हें कह Yeah, रहा it's not that tough. हूं, इट्स सिंपल, तुम भी यही करो, मैं भी यही करूं. यही करो, और क्या करोगे तुम? चलो फिर आ जाएं तुम्हारे फेवरेट बंदे पे. तुम बात करो, हारिस मऊफ. तुम बात करो. Shocking that he went for only 8 runs in his 3 power play overs. Genuinely समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अच्छा स्पेल आ गया. ये बहराम का मोनोलॉग है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ. I was shocked. I was like, damn, none for 8 in 3 power play overs. Never expect that from Haris Rauf. Then he cleans up Alex Carey with one of the balls of the deliveries of the game. ठीक है? That was a really good delivery. Corker of a nip backer. पिछले मैच में भी मारा था Yeah, उसने. Renshaw वाला बेहतर था, but this snip backer breached the defenses of Alex Carey. तो ये 2 dismissals बड़े अच्छे थे across 2 games. His second spell was 3 overs, 1 for 19, and then he ultimately ended up with 1 for 33 in 7 overs. So it was a disciplined effort compared to Haris Rauf's previous performances. और यही है. Wake me up when he does that in a tournament. Okay. But you know what? He has a pretty decent ODI record. But He however, does. तुमने बताया था South Africa में underwhelming record. South Africa में बहुत underwhelming. So he needs to rectify that at least. He is going to be a He part of is plans. going to be a part of your squad. He will be playing that Yeah. World Cup, but please, for the love of God, as a third seamer. अच्छा, मैं उसको आप पावर लोग- प्ले में ना ओवर्स देना. एक आप लोगों के लिए ना, ताकि आप लोग यू कम टू रियल, क्या बोल रहा हूँ मैं? आप लोग ताकि you come to मैं हारिस मऊफ हो गया हूँ. माउफ ही हो गए. अच्छा, सीन ये है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा रियलाइज करवाना है ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाएं अप अंटिल दैट वर्ल्ड कप कम्स. शादाब खान एंड हारिस रऊफ विल बी इन योर स्क्वाड. Yeah. ये मेंटली प्रिपेयर कर लो अपने आप को. Absolutely. तब जब स्क्वाड आएगा ना, तब मुझे मेल्टडाउन नहीं चाहिए. मेल्टडाउन आज से शुरू करो ताकि तब तक प्रिपेयर हो जाओ तुम. क्या ये ठीक रहे? Because look, in Senna they're never not going to take Haris Rauf. और हारिस राउफ को शायद बोला भी यही गया हो कि भाई ये 28 के T20 वर्ल्ड कप के बाद बाय बाय. नहीं, 28 में शायद मैं रख भी लूँ. ऑस्ट्रेलिया वहां पे बहुत शानदार रिकॉर्ड है. स्ट्राया होता है या ऑस्ट्रेलिया होता है? स्टालिया. स्टालिया बना मैं स्टालिया बना दिया. कुछ कर सकते हो. इंजी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं. लव यू तुम ऑस्ट्रेलवी हो यार. अबरार पे आजा, खत्म कर दी ये पॉडकास्ट. स्ट्राया माइट. Sorry mate. Abrar, best game for him in this series. He was really good. Again, but then again, the bitch. good usage. None for 4 and 2 power play overs. Then he was removed, and then he actually took the big wicket of Matt Renshaw, who was the most comfortable batter from Australia, or in this series. probably across both teams in this series. In this series, yeah. So Renshaw की wicket ली, and which was massive, and then he cleaned up Cooper. शुक्र है कहने को मिल गया आखिरी दफा. Cooper. और कूपर को मुझे समझ नहीं आती कि when he wears an Australian shirt उसको हो क्या जाता है. He was trying to ramp an unrampable ball. I think उसको बहुत नीचे भी खिला रहे हैं. और उसके साथ भी ज्यादा है जिस तरह पीक के साथ कर रहे हैं. सेम स्पेल में आउट किया रेंशॉ कूपर को, एंड जो शाहीन ने ट्रिगर किया था वो अब्रार ने पूरा कर दिया. क्या मतलब है? शादाब की कंट्रीब्यूशन भूल गए हो. शादाब की बाद में विकेटें आई हैं. हाँ, तो कंप्लीट तो उसने किया ना. If you had to rank the bowling performances, Shaheen number 1 from Pakistan. Shaheen number 1, Abrar number 2, and then maybe Shadab. तुम अच्छा रेट कर रहे थे शादाब? नहीं, मैं रैंक कर रहा था कि वो शादाब डिडंट बोल. नहीं, वो रैंक होती नहीं है ब्रो. मतलब शादाब की इतनी उतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं थी जितनी शाहीन और अब्रार की थी. करीब भी नहीं थी, मैं यही तो कह रहा हूँ. Yeah, but 2 for 19 in 10 overs is mad impressive, and he got better with each game. ठीक है, तो सही है. Good series for Abrar Ahmed. He got better with each game. The pitch got worse with each game. Yes, ये भी तो याद. True, very true. और फिर shouldn't have played 3 games. You knew what he could do. बेचारा मैट डैनी. सूफी मैक के साथ तो कोई क्रिमिनल हरकतें हो गई है ना. सूफी मैक सोच रहा होगा यार, इस पिच पे मुझे गेम नहीं मिली है. नसीम सोच रहा होगा मुझे रिहा भी पूरा करने देते. सही बात है. रोहिल कह रहा होगा यार वैसे जब कभी सिलेक्ट होता हूँ मैच तो कभी भी नहीं मिलता. वो बेचारा, वो उसको मिलना भी नहीं है मेरे ख्याल से, जिस तरह का सीन चल रहा है. और शामिल, चलो ठीक है, शामिल का स्कोर नहीं आना था इस तरह की और नहीं शामिल प्रोटेक्ट ही हो गया. आई एम द लीस्ट डिसअपॉइंटेड इस बात पे कि शामिल को गेम नहीं मिली. बाकी ज्यादा डिजर्व करते थे गेम. शामिल डज स्ट्रगल वर्सेस स्पिन. He wasn't the right pick for this series in the first place. अगर आपको पता था कि आप स्पिन विकेट्स बना रहे हो. ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान ने कुछ नोट्स ले लिए हो ना इससे, तो शायद इन्हें पता चल गया हो कि साहिबजादा फरहान इज नॉट कट आउट फॉर ओडीआई क्रिकेट. अगर मैं होता तो. अच्छा, वैसे एक चीज तुम्हें बताऊं. हाँ, When Saim comes back, you can play 8-3 because 5th bowler वाला इशू सॉल्व हो जाता. नहीं तो वो तो मास भी था. नहीं, बट Saim can give you 7 overs. मास को ट्राई तो करो. मास को नहीं ट्राई करना ना. 2 ओवर दिए थे पूरी सीरीज में. अच्छा खैर, साइम एंड फखर नीड टू कम बैक 100%. अगर मास को रखना तो he can be bench strength.
Just as someone who can, ठीक you know, है। wild card entry. हाँ सही है, बैकअप ओपनर अगर किसी को रखना है तो और वो कौन माज है बैकअप ओपनर यार? ओ शान का नाम काफी मेंशन हो रहा आई है, डोंट, पता है देर हो गई है शायद, शान नहीं आ सकता, मुश्किल है। आई उसके बेस्ट फॉर्मेट में उसे गेम ज्यादा नहीं मिली जो कि मेरे लिहाज से ओडीआईस था, Yeah. लेकिन इट्स अ बिट टू लेट नाउ। Maybe in T20s he can आई get a डोंट run. इवन नो, वैसे साउथ अफ्रीका में ही इज नॉट दैट बैड यार। Yeah, वो उसी तरह की पिचेस बल्कि उसको थोड़ी सूट करती हैं, बट उसको फिर क्या कहाँ खिलाना है? 4 पे रिजू ने वापस आना? पता नहीं, आई डोंट थिंक ही इज कमिंग बैक। You think he's just done now? आई थिंक They've lost faith entirely. हैसन और उसकी बनती नहीं है, दैट्स व्हाट आई थिंक। Cricketing reasons भी हो सकते हैं, non-cricketing नॉन reasons भी हो क्रिकेटिंग सकते रीजंस है हैं। ब्रो, इसमें अच्छा। क्रिकेटिंग रीजंस नहीं है। फिर मैं बोलूंगा क्योंकि अगर क्रिकेटिंग रीजंस होते ना तो इसमें 6 से 7 बंदे थे जो डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान खेलना। Also आप ये देखो ना कि in this last little while where Rizwan hasn't struck at a high pace, Babar hasn't either. No one has. Yeah. Who has? वो दोनों mid-70s की strike rate पे बैठे हुए थे। क्या करे, एक अच्छी बात है पता है, पूरे इस सिनेरियो में ना एक बहुत अच्छी बात Scenario होता है सबसे पहले तो। सिनेरियो में एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि अगले 54 डेज पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। Yeah, so everyone can take a breather. आई कैन टेक अ ब्रीथ। हालांकि लोग इस वक्त थोड़े खुश होंगे, ये 25-30 दिन बाद आप लोग कह रहे हो कहाँ रह गए हैं बॉयज को देखना है। वो तो हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप चल रहा होगा ना तो गुड डिस्ट्रैक्शन। हाँ नहीं, फुटबॉल पे ध्यान दें थोड़ा सा। We'll continue to churn out some cricket related content. नहीं, आप लोगों के कंटेंट तो आएगा ही। कोई मजे के ड्राफ्ट्स कर लेंगे। ड्राफ्ट्स होंगे, अभी एक और प्लान है जो अभी रिवील नहीं करना तुम है। नंग्याल खरोटे तो निकाल लो अपने। अभी इन्हें रिवील नहीं करना, लेकिन वो भी आ रहा है। फिर निप बैकर्स भी लाएंगे, निप करेंगे। बैकर्स बल्कि आ रहा है बस सून। हाँ मैंने ऐलान कर दिया, अब तुम्हें करना पड़ेगा शूट। ये लो बाकी yeah man, that wraps up this ODI series that no one wants to remember. Everyone would like to collectively wipe this out of their brains. except for our team. Yeah. अच्छा चलो फिर हम चलते हैं यार। हम लाइक निकलते हैं। सब्सक्राइब शेयर फॉलो अस एवरीवेयर। उसके अलावा ये पीछे पोस्टर लगे हुए हैं यार, Please ये ले यार, लो, ये जो टेढ़े लगाए हुए हैं नोमी ने, अब मैंने देखा। थोड़े टेढ़े लगे हुए मगर यही बॉयज थे, इनके ही ले लो। इमरान खान विंटेज, नोमी पॉइंट एवरग्रीन एंड पेस इज पेस यार, जिसको अपडेट करना है पेस वाज पेस यार। या Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart Radio, जहाँ जाए वहाँ पे जाके सुन ले जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए थ्रू इजी पैसा या पेट्रियन। हम आपसे अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीक। Until then, bye-bye. Boy Gaza, see you later. They've defeated Stroyer, mate. बहुत मुश्किल पॉडकास्ट Yeah, पता नहीं ये सीरीज इतनी मुश्किल क्यों मेरे थी। मुंह से गाली नहीं निकली, ये सक्सेस है। एक्चुअली मुझे पता है इतनी मुश्किल क्यों थी, because shit cricket. सक्सेस